Well, this is a very important thing. With everything, I think this is the most important of all because these are the voiceless, souls of the city, not of the city, this of the country. And if we address them, if we address their issues, I mean, I'm sure Mahatma Gandhi's favorite lines are that a country is known by the way it treats its voicelesses, and so do we, so should we, and I think this is a good initiative to think about this because veterinary and doctors for the voicelesses, because you don't know what happens to them. We don't know when what sort अभी आज हमारे हमें ऊपर वाले ने जबान दी है तो हम जबान से का इस्तेमाल करके अपनी बातें रख सकते हैं, कुछ अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन इनको इनका इनका इनको कौन इनके लिए हमें स्वयं जो है पहल करनी चाहिए, और मुझे लग रहा है अर्जुन ने ये पहल की है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ. आई एम नोन टू द फैमिली and when he invited me for something like this, I said I might as well come and give a support for this. And I think many more like this should happen. I've seen Arjun doing good works on various fields, and this is one of the fields which he is scared. So I'm there. We are all Bandrites, so we always stand for the causes. And Bandra's got activists who are known for causes like environment, for the for these voiceless, you can say dogs, cats, and all of them. So I'm sure it's going to be like a great measure towards this direction. Okay. This is a very good initiative because ultimately, as we take care of human beings, equal care has also to be taken about animals and the stray animals especially. And I'm very happy to note that such an initiative has been taken by this foundation. And even though it's just a beginning, but I'm sure that as time picks up, more and more of such organizations will come forward for this cause. So ultimately, definitely, it's a very good cause, and I wish them all the best. Why do response systems like this matter in a city like Mumbai? Yeah, as a matter of fact, not only Mumbai, but any metropolitan city, as I said, needs a system in place so that, any stray animal or any animal is hurt, be any of the varieties, or, is in need, is an injury, needs some immediate help. Then most of the time, because of no ambulance mechanism to pick them up, inevitably either they lie on the road or they die on the road. And if at all there is any philanthropic person, he or she ensures that they pick it up and get it to the next vet hospital. This is a very nice institutional mechanism to ensure that anyone can call up on the whatever is the toll free number, and ambulance comes there, picks up the animal that needs help, and obviously immediately take it over to the nearest veterinary hospital whereby they can be given the due medical care. So ultimately, like they're also a living being. So ultimately, we need to take care of them equally as we are pressed and as far as we are, very touchy about human beings. What impact do you think this can create at a scale? Yeah, as I said, you see, any initiative which is started is always on a very low scale. So ultimately, there are three aspects. One is scaling up by the organization itself. Two is that taking a cue from what this organization is doing, other philanthropic or groups, or under the CSR or maybe under the corporate responsibilities, take up similar initiatives. And like I also feel that just like if you see total Mumbai as such, the veterinary hospitals which are there is primarily run by government organizations, mainly BMC. Now, like one private organization is setting up a veterinary hospital. But I personally feel that even in the corporate sectors or people who are in the private sectors also need to look into this as maybe giving back something to the society. And I'm sure that with such initiatives which Arjun is taking and his team is taking, others will follow suit. I wish him and his organization all the best. And I'm very happy to be here today. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I am completely. I have six at home. हमारे घर में हमेशा पेट्स देखा है ना आपने जी. आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू. भरे हैं घर में. और मेरी बहन जितना मैं करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आना करती है फॉर स्ट्रे एनिमल्स. और
मुझे याद है बहुत बार रास्ते पे अगर कोई वुंडेड एनिमल को देखा है तो वो उठा के गाड़ी में बैठा के लाती थी घर पे और हॉस्पिटल लेके जाती थी। तो आई थिंक आज जो ये कर रहे हैं विद अर्जुन खंडारी फाउंडेशन, Mumbai's first, you know, stray animal ambulances are launched, or there are going to be more than 25 across the city. 24 in the coming year and हाँ. 6 this month. We are और आई launching. एम So, श्योर ये मुंबई कर रहा है और आगे जाके हर सिटी में ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब चोट लगती है हम बोल पाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए जो इमरजेंसी रेस्क्यू का ये जो रेमेडी निकाला है इन्होंने, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। मी बीइंग एन एनिमल लवर, आई एम हियर टू फुल्ली सपोर्ट दिस। हमें देखने को मिल रहा है जो जैसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए आज महादेव का दिन है, महादेव का दिन, और ईशा जी ने हमारा ब्लेसिंग दिया हमारे कार्यक्रम पे। शी इज अ एनिमल लवर, शी इज अ पेट लवर, शी इज अ स्ट्रे लवर। तो जब इतनी अच्छी गुड वाइब्स होती है एक चीज की, तो मुझे पक्का है कि ये कॉज अच्छा चलेगा और हम ये कॉज दिल से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हर स्ट्रे एनिमल तक पहुंचे और हमारी सुविधा हर स्ट्रे को लाभ दे पाए। सर जी, जैसा कि आपने बताया कि और ऐसे ढेरों सारे ऐसे इनिशिएटिव जुहू, उसके आगे अगर हम जाए जी। उसके भी आगे, तो ये पूरे मुंबई में इस तरह का होना चाहिए। जैसा जी कि आपने बिल्कुल। बताया। ये इनिशिएटिव देखिए, ये महीने में 6 एम्बुलेंसेज हम लॉन्च कर रहे हैं और ये पूरा मुंबई कवर करेंगे। पूरा मुंबई। और हर 3 महीने में हम 6 एम्बुलेंसेज लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब हम एक चीज चालू करते हैं उसके टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये 6 एम्बुलेंस के साथ समझेंगे कि ये मुंबई इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। और इस साल हम 24 एम्बुलेंस लॉन्च करेंगे और आस्ते आस्ते हम थाने में जाएंगे, हम पुणे में जाएंगे, हम बाकी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी कैपेसिटी हो हम वहाँ पहुँचेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्ट्रेज है उनको हम ये कार्य से लाभ दे पाए। तो हर जगह लॉन्च के लिए ईशा जी को बुलाएंगे। ऑफ कोर्स, अगर जी। ईशा जी हमारी ब्लेसिंग्स Done. ईशा और आना दोनों पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। Thank you. Important are initiatives like this, according to you? I feel initiatives like this are really important. At least आज का जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आज की डेट का हम सिचुएशन देखें, वह दुनिया तो छोड़ दीजिए बट इंडिया एज अ होल अगर हम देखें तो इंसानों की भी नहीं पड़ी है किसी को। तो ऐसे वक्त पे जानवरों के बारे में सोचना, एनिमल्स के लिए एक भावना रखना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। उसी से हम इंसानों से भी प्यार कर सकते हैं। आई फील इफ़ यू आर अफेक्शनेट टूवर्ड्स एनिमल्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड अर्जुन कंधारी फाउंडेशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। What made you want to support this initiative, and how important do you think it is to use your voice for a cause like My love for animals made me want to support this initiative because I love animals. कोई भी हो, dog, cats, anything. I love animals. They just, pure souls. I feel. इंसानों से ज़्यादा जानवरों पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और उससे जो हम हैं वो हमारे गुड कर्मा भी कमाते हैं, गुड डीड्स भी कमाते हैं, और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो जानवरों के बारे में सोचते हैं। और उनमें से अर्जुन माशाल्लाह एक ऐसे शख्स है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर वो प्रूव किया है कि ऐसे भी लोग अभी भी है जो इतना सीरियस होकर ग्राउंड लेवल पे उतरकर काम करने के लिए आज भी अवेलेबल है फॉर एनिमल्स। गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन जो फील्ड पे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो हमें झूठे दिलासे देते आई है, सब कुछ चंगा सी तो एक फिर से एक झूठा दिलासा है लोगों के लिए। और न्यू खबरें भी आ रही है कि जैसे कोई बोल रहा है लॉकडाउन लगने वाला है या जो भी। ये सरकार को सोच समझ के अपने स्टेटमेंट्स पास करने चाहिए जब भी आप कुछ बोल रहे हो, क्योंकि जब हमारे पीएम एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते नहीं है, अगर सबको पता है ये बात। लेकिन अगर जब आप कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो ऐसा स्टेटमेंट मत दो जिससे सिटीजन्स के बीच में भगदड़ मच जाए, लोग टेंशन में आ जाए। ऑलरेडी गैस सिलेंडर्स और ये सब की शॉर्टेजेस की वजह से लोग टेंशन में चल रहे हैं। तो सरकार का काम होता है ऐसे टेंशन के वक्त में
लोगों को राहत देना, जो कि आई थिंक सरकार फेल हो रही है करने में। थोड़ा सा और ज्यादा लोगों के तरक्की पे और देश की तरक्की पे ध्यान दे, हिंदू मुस्लिम करना बंद करे तो बेहतर होगा। मुंब्रा के भी जो मजदूर है वो पलायन कर रहे हैं जब से ये बात सामने आई है लॉकडाउन की, उसके बाद से लोग जो है वो छोड़ रहे हैं। मुंब्रा की क्या स्थिति है, क्या बताना चाहिए? देखिए, मुंब्रा की स्थिति फिलहाल तो पानी की बहुत शॉर्टेज है। एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह तो वो तो अभी शॉर्टेज हुई है, बट पूरा रमजान हमने बिना पानी के निकाला है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और अभी टीएमसी में, थाने महानगर पालिका में, जैसे बॉम्बे में हमारा बीएमसी है, वैसे टीएमसी के, क्योंकि हम चुने हुए कॉर्पोरेटर्स है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम हमारी जनता के लिए आवाज उठाए। तो पानी को लेकर हमने बहुत सी लेटर सबमिट किए, बहुत सारे ऑफिसर से बात की कि पानी का मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तब जाके हमारे थाने महानगर पालिका के मेयर से हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और पानी की न्यू पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हुआ है, जिससे कई सारे लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो काम जब इस तरीके से होता है, अगर आप आवाज उठाओ और उस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो सरकार की तरफ से, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, हाँ, काम करने वाली सरकार है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा और सिर्फ आवाजें उठाई जा रही और उसका कोई नतीजा ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर आवाज उठाना है तो ऐसे जगहों पर जाके उठाइए जहां आपको लग रहा है कि आपका सोल्यूशन मिलेगा। सफाई को लेकर भी कई सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जी। मुंबई से, उस पर क्या कहें? सफाई तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छे से चल रही है। क्रिस्टल की टीम अपना काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में उनको थोड़ा सा ऐसे पता नहीं क्या होता है, और वो कचरे छोड़ देते हैं रोड के ऊपर। फिर हम उनको बोलते हैं कॉल करके कि प्लीज वो कचरा वहां से उठा लीजिए। तो फिर मेन इशू आ जाता है कि मुंब्रा के पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बट मुंब्रा आता है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और थाने डिस्ट्रिक्ट के पास ही डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो ये थोड़े बहुत कचरे को लेकर इश्यूज चलते रहते हैं, बट क्योंकि अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम चेंज लाने में पहल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जल्द ही, मेरी उम्मीद है कि ये मुद्दे जो जैसे आपसे टॉपिक सारे कचरा, गटर, पानी, ये बंद होकर थोड़ा डेवलपमेंट के काम पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैम, बात की जाए लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, जी। कंगना रनौत आए दिन उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, लुक्खा है, टुच्चा है। क्या लगता है, इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाना सही है? देखिए, पहले तो लैंग्वेज देखिए आप। राहुल गांधी जी गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। हम भले दूसरी पार्टी से है, बट वी रिस्पेक्ट द गांधी फैमिली एंड एवरीबॉडी जो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, जिसकी एक हिस्ट्री रही है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है, आई वुड से। और ऐसे लीडर के ऊपर ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स यूज करना इज, आई थिंक, बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप बोल लीजिए। जैसे वर्ड्स आपने अभी मुझे बताए, और स्पेशली उनके मुंह से ये सब वर्ड्स तो अच्छे भी नहीं लगते। तो आई थिंक ये चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सारा यूथ आपको फॉलो कर रहा है, तो वो यूथ को आप क्या मैसेज दे रहे हो ये इस। कंगना ने आरोप लगाया हाँ, जो मुझे कि- पता है, बट वो आरोप में वर्ड्स कैसे यूज किए हैं? आप नौजवानों को क्या सिखा रहे हो कि लीडरों को ऐसे वर्ड्स बोलना सही है? लीडर जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमें सच और गलत का फर्क बता रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं जनता के लिए, ऐसे लीडर को ऐसे टर्म्स और वर्ड यूज करना रॉन्ग है। तो जब इतने लोग इतने ज्यादा तादाद में आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके मुंह से कौन सी बात निकल रही है उस पर ध्यान दीजिए। Thank you. थैंक यू।